آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ورلڈ سکل سیل کنٹرول ڈے کی حیثیت سے منایا گیا 19 جون کا دن۔ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے سبھی میونسپل اسپتالوں میں منعقد کیے گئے بیداری پروگرام۔ شہریان کو مذکورہ مرض کی علامات اور علاج سے متعلق دی گئی معلومات۔ بجلی سپلائی کمپنی اور بجلی پاریشن کمپنی میں التوا میں پڑی نوکر بھرتی کی کارروائی اسمبلی الیکشن سے قبل کر لی جائے مکمل۔ بے روزگار الیکٹریکل انجینئرز نے شہر میں نکالا مورچہ اور ڈویژنل کمشنریٹ پر کیا احتجاج۔ مراٹھا ریزرویشن تحریک کے بعد اب OBC مفادات میں کیے جانے لگے مظاہرے۔ OBC کوٹے سے مراٹھا سماج کو ریزرویشن نہ دیے جانے کے مطالبے پر پیٹھن تعلقے میں کیا گیا راستہ روکو احتجاج۔ اور راستوں کے کنارے کیے گئے ناجائز قبضہ جات کے خلاف میونسپل انتظامیہ کی جانب سے شروع کی گئی ہے خصوصی مہم۔ گزشتہ روز حمایت باغ چوراہے کے علاوہ سڑکو N7 اور مکندواڑی علاقے میں بھی چلے بلڈوزرز۔ خبریں تفصیل سے۔ ورلڈ سکل سیل کنٹرول ڈے کے موقع پر میونسپل کارپوریشن کے شعبہ ہیلتھ کی جانب سے شہر میں موجود سبھی میونسپل ہاسپٹلز میں بیداری پروگرامز منعقد کیے گئے۔ ناظرین، ہر سال 19 جون کا دن عالمی سکل سیل کنٹرول ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، جس کے تحت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جشی کانت کی ہدایت پر میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا کی قیادت میں اور اسسٹنٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ارچنا رانے کی رہنمائی میں شہر میں موجود میونسپل کارپوریشن کے سبھی 40 دواخانوں میں سکل سیل نامی بیماری سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے پروگرامز منعقد کیے گئے اور شہریان کی اس بیماری کی علامات اور اس کے علاج سے متعلق رہنمائی کی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ مرض عموماً بچوں میں پایا جاتا ہے اور علاج کے ذریعے اس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے اطلاع دی گئی ہے کہ جنوری 2024 تا جون 2024 کے درمیان شہر کے 10,283 مریضوں میں اس مرض کی جانچ کی گئی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پروگرامنگ آفیسر ڈاکٹر فرحین فاطمہ نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ AMC کی جانب سے چلائی جا رہی اس مہم سے استفادہ حاصل کریں۔ مہا پاریشن کمپنی کی جانب سے رد کیا گیا تقررات کا پروگرام۔ اسی طرح بجلی سپلائی کمپنی کے التوا میں پڑے نوکری بھرتی کی کارروائی فوری شروع کی جائے اور اسمبلی انتخابات سے قبل اسے مکمل کیا جائے۔ اس مطالبے پر الیکٹریکل انجینئرز امیدواروں نے لاکھوں کی تعداد میں شریک ہو کر شہر میں ایک مورچہ نکالا اور ڈویژنل کمشنریٹ دفتر پر زوردار احتجاج کرتے ہوئے ایک میمورنڈم علاقائی کمشنر کے سپرد کیا۔ مورچے میں شامل بے روزگار الیکٹریکل انجینئرز کا کہنا ہے کہ بجلی سپلائی کمپنی کے ٹرانسمیشن شعبے میں خالی عہدوں پر تقررات کے لیے سال 2017 میں پروگرام ظاہر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سال 2020 میں اس وقت کے وزیر توانائی نے 8,500 آسامیوں پر تقررات کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس ضمن میں MSCB کے اعلیٰ افسران کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں نوکر بھرتی کے لیے لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت دی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد سال 2023 میں مختلف 8 عہدوں پر تقررات کے لیے اشتہار دیا گیا، جس کے لیے تحریری امتحان فروری اور مارچ 2024 میں لیا جانا تھا، جس میں سے 6 عہدوں کے لیے تحریری امتحان لیا بھی گیا، مگر بقیہ 2 عہدوں کے لیے امتحان ہی نہیں لیے گئے اور لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر نافذ ضابطۂ اخلاق کا بہانہ بنا کر امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ اور اب جبکہ لوک سبھا انتخابات مکمل ہو گئے ہیں، مرکزی حکومت بھی تشکیل دی جا چکی ہے، تو متعلقہ کمپنی نے امتحانات سے متعلق دیا گیا اشتہار ہی منسوخ کر دیا۔ لہٰذا جلد از جلد اس ضمن میں اشتہار جاری کر کے امتحان لیے جائیں اور تقررات کا عمل اسمبلی انتخابات سے قبل مکمل کر لیا جائے۔ اسی طرح بجلی سپلائی کمپنی میں بھی مختلف عہدہ جات کے لیے دسمبر 2023 میں اشتہار جاری کیا گیا تھا، جس کے مطابق فروری اور مارچ 2024 میں امتحانات لیے جانے تھے، مگر یہاں بھی اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس درخواست دہی کی میعاد میں
3 मरतबा इजाफा किया गया। लिहाजा अब असम्बली इंतखाबात से कबल बिजली सप्लाई कंपनी के खाली ओहदेजात पर नौकर भर्ती की कार्रवाई फौरी मुकम्मल की जाए। इसी तरह बिजली सप्लाई कंपनी के इन खाली ओहदेजात पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्त गुजारों का रियासत महाराष्ट्र का साकिन होना लाजमी करार दिया जाए। इसके अलावा MSEB के तीनों ही शोबों में खाली होने वाले ओहदों पर हर साल भर्ती का अमल जारी रखा जाए। इन मतलबात पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लाखों तलबा ने आज क्रांति चौक से डिविजनल कमिश्नरेट पर मोर्चा निकाला और इलाकाई कमिश्नर दफ्तर के सामने ज़ोरदार मुजाहरा करते हुए एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के इन मतलबात को NCP शहर की जानिब से भी हिमायत दी गई है। तर आमचं एकच म्हणणं आहे की MSEB जो काही डिपार्टमेंट असं महाजनको, महाडिस्को, महावितरण कोणी असो, त्यांनी आतापर्यंत जेवढे ॲड आलेले आहेत हे ॲड लवकरात लवकर म्हणजे तुरंत 10 ते 15 दिवसामध्ये ॲड काढावं आणि 2 ते 3 विधानसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर ही आपली भरती म्हणजे एक्झाम भरती परीक्षा घेऊन मुलांना जॉईनिंग द्यावं ही आमची कळकळीची विनंती। आणि असं नाही झालं तर आम्ही महाराष्ट्र शासनाला दाखवून देऊ की महाराष्ट्रामधल्या 2 लाख जे विद्यार्थी आहेत विद्युत अभियंता याची काय युनिट आहे तुम्हाला दाखवून देऊ आम्ही विधानसभेला। इंजीनियर से सब इस ऐड के लिए बहुत इंटरेस्टेड है और अचानक से ऐड कैंसिल कर दी है। यहाँ 4-5 साल से कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मैरिड वुमेन्स हैं, उनकी 6 महीनों की बच्ची आई छोटी वो छोड़कर इधर पढ़ाई के लिए दूर आई है। और इस कंपनी ने अभी 4-5 दिन पहले ये पूरी ऐड ही कैंसिल की। कुछ पोस्ट की पेपर भी मतलब अभी पेपर भी हुए थे 2-4 महीने पहले, वो पूरी ऐड ही कैंसिल की थी। कुछ बच्चों का सिलेक्शन फाइनली हुआ ही था और अभी कैंसिल किया है। और उन्होंने ऐड में डोमिसाइल भी नहीं कंपलसरी किया, इसलिए महाराष्ट्र के बाहर के बच्चे भी इससे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनसे डोमिसाइल भी कंपलसरी करनी चाहिए। और उन्होंने गेट कंपलसरी की है, कुछ ऐड के पहले उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि गेट कंपलसरी कर। आणि ही ॲड 2023 मध्ये आलेली होती, परंतु ही ॲड आज रद्द करून मुलांचं फार मोठे नुकसान केलेलं आहे। एकतर यामध्ये विवाहित झालेल्या महिला घर सोडून क्लास करण्यासाठी आलेल्या आहेत आणि प्रत्येकाची परिस्थिती असेलच असे नाही आणि हे क्लासला भरमसाठ फीस द्यावी लागते, घरदार सोडून यावं लागतं आणि हे जर सर्व शासन जर मुलांच्या आयुष्याशी खेळत असेल तर मुलांना आत्महत्याची करण्याची वेळ येऊ नये। आणि ही जर परीक्षा नाही झाली तर मुलांचं एज बार होईल, मुलांचं वय निघून जाईल। एकतर 24 का 35 वर्षाची वयाची अट आहे आणि ही म्हणून ही परीक्षा लवकरात लवकर घेण्यात आली पाहिजे। मराठा समाज को OBC कोटे से रिजर्वेशन हरगिज न दिया जाए, इस मुतालबे पर तालुका पैठन में OBC सकल समाज की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए गए। IRA के सकल OBC समाज, भटके विमुक्त समाज और महात्मा फुले समता परिषद की जानिब से आज बरोज जुमेरात पैठन के सह्याद्री चौक में ये रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में मज़कूरा तंजीमों और समाज के लोग और ओहदेदार और कारकुनान शरीक हुए। एहतजाजियों ने सरकार मुखालिफ नारेबाजी की और कमोबेश 1 घंटे तक रास्ता रोके रखा, जिसके सबब इस चौक में दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। एहतजाजियों का मुतालबा है कि OBC भटकिया विमुक्त समाज के रिजर्वेशन के साथ कोई छेड़खानी न की जाए। इस मुतालबे ही को लेकर वड़ी गोदरी में 2 अफराद प्रोफेसर लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे ने बेमियादी भूख हड़ताल भी शुरू कर रखी है और उनकी भूख हड़ताल 7वें रोज में दाखिल हो चुकी है, लेकिन हुकूमत इंतजामिया ने अभी तक इस हड़ताल पर कोई नोटिस नहीं लिया है। चुनाचे मज़कूरा समाज और तंजीमों की जानिब से रियासत भर गुस्सा व नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। पैठन के इस आंदोलन में समता परिषद के प्रकाश दिलवाले, सोमनाथ जाधव, देवीदास सोनोने, अनिल जाधव, सोमनाथ परदेसी, कल्याण रंधे और सैकड़ों कारकुनान, ओहदेदारान और समाज के लोग शरीक थे। आज पैठण तालुका सकल OBC समाजातर्फे सह्याद्री चौक या ठिकाणी सर्व OBC समाजातर्फे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले। कारण महाराष्ट्रातील OBCचे नेते प्राध्यापक लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे हे गेल्या 7 दिवसापासून
वडीगोद्री या ठिकाणी उपोषणाला बसले आहे, परंतु प्रशासनाचे कुठलेही प्रतिनिधी त्या ठिकाणी गेलेले नाही. जे प्रतिनिधी गेले त्यांना काही अधिकार नव्हता, कारण त्यांनी आतापर्यंत सरकारला भावना कळलेच नाही. कारण सरकार ओबीसीच्या बाबतीमध्ये अजिबात संवेदनशील नाही. कारण गेले 7 दिवस उपोषण चालू आहे. सरकार कुठेतरी तुझा भाव करीत असल्याची सर्व समाज बांधवांची त्या ठिकाणी भावना निर्माण झाली आणि ओबीसी समाजामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आक्रोश निर्माण झालाय. आणि याचा परिणाम काही एक दोन दिवसात जर सरकारने दखल घेतली नाही, माननीय राज्यपाल महोदयांनी किंवा मुख्यमंत्र्यांनी जर लेखी आश्वासन त्या उपोषणकर्त्याला दिलं नाही, तर याच्यापेक्षा आणखी तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रभर ग्रामीण भागापर्यंत प्रत्येक खेड्यापाड्यामध्ये अशा प्रकारचं आंदोलन होणार आहे की सरकारने कधी बघितलं नव्हतं. अशा स्वरूपाचं तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करण्याच्या मानसिक स्थितीमध्ये ओबीसी समाज झालेला आहे. वडीगोद्री इथे हाके साहेब जे 7 दिवस झाले बगर अन्न पाण्याचे उपोषण करत आहेत, त्याला पैठण तालुक्याच्या वतीनं सर्वांनी रस्ता रोको करून पाठिंबा देण्याचे काम ओबीसी समाजाने केले आहे. ओबीसी मफादात को लेकर वडीगोद्री में जारी हड़ताल की हिमायत करते हुए हिंगोली के ओबीसी समाज के हजारों कारकुनान गाड़ियों के जरिए वडीगोद्री के लिए रवाना हुए। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र के 60% ओबीसी तबक़ात की तालीम और नौकरियों और सियासी हिस्सेदारी के लिए उन्हें दिए गए 27% रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के सगे सोयरे से मुतल्लिक़ा जीआर की फौरी मनसूखी के मतालबे पर कमोवेश 54 लाख इंदराजात के बोगस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इन इंदराजात को रद्द करने का मतालबा लेकर रियासती ओबीसी कमीशन के साबिक़ मेंबर प्रोफेसर लक्ष्मण हाके और उनके दूसरे एक साथी ने ज़िला जालना के अंबड़ तालुक़े के वडीगोद्री में बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर रखी है। हुकूमत फौरी हाके की भूख हड़ताल की आवाज़ को सुने और उनके मतालबात को मंजूर करे, इस तरह का इजहार और हाके की भूख हड़ताल की हिमायत करते हुए हिंगोली से हज़ारों ओबीसी अफराद व कारकुनान गुज़िश्ता रोज़ सैकड़ों गाड़ियों के ज़रिए जालना के वडीगोद्री रवाना हुए। वाज़ेह रहे कि ज़िला जालना ही के अंतरवाली सराटी में अभी चंद रोज़ पहले तक मराठा रिजर्वेशन योद्धा मनोज जरांगे की भूख हड़ताल भी जारी थी। बीवियों के सताए हुए पत्नी पीड़ित मर्दों ने रिवायती तौर पर पीपल पूर्णिमा मनाई और जालिम बीवियों से छुटकारे के लिए प्रार्थना की। अयार है कि ख़ानदानी व घरेलू तनाज़ात में बीवियों के जुल्म ज़ियादती के शिकार बीवी गजीदा शौहर तनाज़ात के हल और ऐसी बीवियों से छुटकारे के लिए अपनी संगठना पत्नी पीड़ित संगठना के तहत हर बरस वट सावित्री पूर्णिमा के मौके पर पीपल की पूजा अर्चना करते हैं। वाज़ेह हो कि हिंदू ख़वातीन दरअसल इस मौके पर वट पूर्णिमा मनाती हैं और बरगद के दरख्त की पूजा करती हैं और अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता जन्म जन्म बाकी रहे, इस मकसद से बरगद के दरख्त के साथ साथ फेरे भी लगाती हैं। ताहम बदकिस्मती से दूसरी जानिब कुछ बीवियां अपने जीवन साथी के लिए ही वबाले जान बनकर उसका इस जिंदगी का जीवन ही मुश्किल कर देती हैं। ऐसे बीवी गज़ेदा शौहर इस वट सावित्री पूजा को भी जालिम औरतों के जुल्म का हिस्सा तस्वुर करते हैं कि वो 1-2 नहीं 7-7 जन्मों तक उनका पीछा न छोड़कर उन्हें अपने जुल्म ज़ियादती के हिसार में बांधे रखना चाहती हैं। ऐसे ही मजलूम शौहरों की तंजीम ने शहर के मज़ाफ़ात करोड़ी में अपना एक आश्रम भी बना रखा है, जहां बीवियों के सताए हुए लोग आसरा लिए हुए हैं और ये लोग पिछले कई बरसों से यहाँ पीपल पूर्णिमा मनाते हैं और अपनी जालिम बीवियों से छुटकारे की प्रार्थना करते हैं। अन्ना साहब पाटिल तरक्याती बोर्ड के नरेंद्र अन्ना साहब पाटिल ने आज बोर्ड के कामकाज का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासती वज़ीर गिरीश महाजन की जानिब से दिए गए बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। एकनाथ शिंदे साहेबांनी आदरणीय मंत्री शंभूराज देसाई साहेबांच्या माध्यमातून खूप योग्य सूचना दिलेल्या आहेत। अधिकारी वर्ग कामाला लागलेला आहे आणि अजून सरकारची त्याबद्दलची व्यवस्थित भूमिका अजून स्पष्ट झालेली नसताना अशा प्रकारे वक्तव्य प्रत्येकाने टाळलं पाहिजे। कारण हा सर्वेक्षणाचा मुद्दा आहे, हे चर्चेचा मुद्दा आहे, अधिकाऱ्यांचा मुद्दा आहे, कायदा कानून बघितला जाईल, तपासला जाईल आणि हा जर निर्णय राज्यामध्ये लागू झाला तो यदाकदाचित देश पातळीवरती म्हणजे सुप्रीम कोर्टामध्ये टिकला पाहिजे। याच्याबद्दल अधिकारी लेवलवरती चर्चा चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळेच डिपार्टमेंट इन्व्हॉल्वड आहेत, त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी हा निर्णय होईल असं मला वाटतं।
बघा, प्रत्येक समाजाने आपली आंदोलनाची पायरी सांभाळली पाहिजे, ज्याच्यामध्ये नागरिकांचं नुकसान होता कामा नये, सरकारी मालमत्तेला धक्का लागता कामा नये. आंदोलन करणं हे आपला जन्मसिद्ध अधिकार असतानाही आपला तोल जाऊ नये हा आपण प्रत्येकाने पाहिलं पाहिजे. आता ह्याचा तोल गेला, हा अरेतुरे बोलतो राज्याच्या अधिकाऱ्यांना, मंत्र्यांना, तर मग आम्ही पण अरेतुरे बोलणार हे योग्य नाही. यांनी रस्ता रोको केला, जाळपोळ केली, ह्याला कोणी अडवलं, त्याचे केसेस मागे घेतले, आता आम्ही पण करणार. ह्याच्यामुळे काय होतं की समाजामध्ये चुकीचा मेसेज जातोय, तो मेसेज जाता कामा नये हे प्रत्येक समाजाच्या लोकांनी त्या ठिकाणी काळजी घेणं गरजेचं आहे. 17 जून को शहर, ज़िला और मज़ाफ़ात में ईद उल अज़हा जोश व खरोश के साथ मनाई गई. बंदगान तौहीद ने नमाज ईद अदा की और सुन्नत इब्राहिमी की तकमील की. नाजरीन, मज़हब इस्लाम की तालीमात के मुताबिक मुसलमान हर साल ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा ये दो अहम और बड़े त्यौहार मनाते हैं. यूँ तो मिलत इस्लामिया की हर खुशी और अहतमाम के मौके पर बंदगान तौहीद अपने रब के हुजूर इजहार बंदगी करते हैं और इबादत व नमाज़ों का अहतमाम करते हैं. इन दोनों ईदैन पर भी मुसलमान बंदे अपने रब के हुजूर सिजदा रेज़ होकर नमाज दोगाना अदा करते हैं. ईद उल अज़हा के मौके पर शहर की तारीख़ी ईदगाह छावनी के साथ साथ ईदगाह रोज़ाबाग, ईदगाह शाह सोख्ता मियाँ, ईदगाह उस्मानपुरा में नहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ नमाज ईद अदा की गई. इसी तरह शहर की अक्सर मसाजिद में भी नमाज के इंतज़ामात किए गए थे, जहाँ बड़ी तादाद में बंदगान तौहीद ने नमाज ईद अदा की. उलमा कराम और ज़िम्मेदारान ने ईद उल अज़हा के फ़लसफ़े पर मुसलमानों की रहनुमाई की. शहर भर और ईदगाहों पर इंतज़ामिया के नहायत बेहतरीन इंतज़ाम और बंदोबस्त किए गए थे. शहर के पुलिस कमिश्नर और कई ज़िम्मेदार व अमायदीन ने ईदगाहों पर पहुंचकर नमाज के बाद बंदगान तौहीद को ईद की मुबारकबाद पेश की. शहर के अलावा अतराफ़ व अकनाफ और तालुका जात में भी शानदार तरीक़े से ईद मनाए जाने की इत्तला है. हिमायत बाग चौराहे पर रास्ते के किनारे गैर कानूनी तरीके से डाली गई चाइनीज़ स्टॉल और दीगर कई टपरियां म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ हटा दी. म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक कुछ अफराद ने हिमायत बाग चौराहे पर रास्ते के किनारे नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए वहां चाइनीज़ स्टॉल और कुछ टपरियां डाल रखी थीं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावटें आ रही थी और राहगीर भी हादसात की जद पर थे. ये नाजायज़ कब्ज़ात मार्च अप्रैल 2023 में म्यूनिसिपल अमले ने हटा दिए थे, मगर उन लोगों ने दोबारा से वहां टपरियां लगाकर अपना कारोबार शुरू कर दिया था, जिन्हें कई बार ज़मानी ताकीद भी दी गई और तहरीरी तौर पर उन्हें नाजायज़ कब्ज़ात हटा लेने से मुतल्लिक़ नोटिसेस भी जारी की गईं, मगर मज़कूरा अफराद ने फिर भी वहां अपना कारोबार जारी रखा. लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर बेगमपुरा पुलिस के ताउन से ये नाजायज़ कब्ज़ात हटा दिए गए. इसी तरह दूसरी कार्रवाई सिडको N7 इलाके में की गई, जहां कामरेड VD देशपांडे के नाम से मौजूद कम्युनिटी हॉल से मुत्तसिल बहने वाले नाले की ज़मीन पर कब्ज़ा करके 15 बाई 15 के 2 रूम बना लिए गए थे और कब्ज़ादार अपनी फैमिली के साथ वहां रहने भी लगा था, जो शराब पीकर गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते में शामिल मुलाजमीन के साथ गाली गलौज भी किया करता था. लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर सिडको N7 के पुलिस इंस्पेक्टर अतुल यरमे ने पुलिस बंदोबस्त फराहम किया और म्यूनसिपल अमले ने ये टीन शेड वहाँ से हटा दिए. ये कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले की रहनुमाई में डिप्टी कमिश्नर सविता सोनोने, जूनियर इंजीनियर पूजा भोगे, बिल्डिंग इंस्पेक्टर अश्विनी खोतड़कर, सैयद जमशीद, पुलिस इंस्पेक्टर गायकवाड़ और गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ दस्ते में शामिल अमले ने अंजाम दी. अम्बेडकर नगर इलाके में पानी फराहम करने के लिए 40 साल कबल डाले गए पाइप फौरी तब्दील किए जाएं. इसी तरह शहरियान को 3 दिन के वक्फे से पानी फराहम करवाया जाए. इस मतालबे पर दलित पैंथर्स की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया. भारतीय दलित पैंथर के बानी सदर लक्ष्मण भूतकर की क़यादत में किए गए इस मुजाहरे में शामिल अफराद का कहना है कि अम्बेडकर नगर इलाके में पानी फराहमी के लिए आज से 40 साल कबल जो पाइपलाइन डाली गई थी वो पुरानी हो जाने के सबब छलनी बनकर रह गई है और इसमें ड्रेनेज का गलीज पानी शामिल होकर नलों के ज़रिए आलूदा पानी फराहम हो रहा है. लिहाजा पुरानी पाइपलाइन बदलकर वहाँ फौरी नए पाइप डाले जाएं. इसी तरह म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया था
کہ شہریان کو 3 दिन کے وقفے سے پانی فراہم کیا جائے گا، مگر یہ اعلان بھی صرف اعلان ہی ثابت ہوا۔ لہٰذا حسب وعدہ شہریان کو 3 दिन کے وقفے سے پانی فراہم کروایا جائے۔ رمائی گھرکل اسکیم کے لیے دی جانے والی امداد 2.5 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ کی جائے۔ جھوپڑ پٹی علاقوں میں موجود مکانات کے PR کارڈ بنائے جائیں۔ باجی پورہ علاقے میں نئی ڈرینیج لائن ڈلوائی جائے اور نالوں میں جمع شدہ گندگی صاف کروائی جائے۔ اس ضمن میں ایک میمورنڈم میونسپل انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ مظاہرین میں لکشمن بھوتکر کے علاوہ دھمپال دانڈگے، سدھارتھ گوئی، پوار کامبلے، پٹھارے، کستورے، راؤت مسکے، کاسارے، گھورپڑے، شیخ محسن شریف، لالا احمد پٹھان، گوتم سونونے، سید حبیب اور کلپنا گائیکواڑ کے علاوہ پارٹی کے دیگر ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے۔ औरंगाबाद शहराला 3 दिवसाआड पाणी देण्यात यावं। 40 वर्षापूर्वी जुनी पाण्याची पाईपलाईन, ड्रेनेज लाईन यामुळे दुर्गंधी पसरली असून अनेक रोग गॅस्ट्रोसारखे होत आहेत। रमाई योजना जी आहे ही 2,50,000 ऐवजी 5 लाख करण्यात यावा। मिटमिटा असेल, राजनगर असेल या वसाहतीमध्ये सिमेंट रस्ते करण्यात यावे। रमाई घरकुल योजना जी आहे ही रमाई नगर गट नंबर 216-217 मध्ये घरकुल योजना राबवण्यात यावी। अशा विविध प्रकारच्या मागण्या घेऊन भारतीय दलित पॅंथरचे निदर्शनं करण्यात आली। अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांना आताच निवेदन दिलं, त्यांना आश्वासन दिलं की उद्यापासून आंबेडकर नगर असेल, बायजीपुरा असेल, नारेगाव या भागातल्या अंतर्गत 40 वर्षापूर्वीच्या ज्या काही लाईन टाकलेल्या आहेत त्या उद्यापासून नवीन लाईन टाकण्याचं काम सुरू करण्यात येईल, असं आश्वासन रणजित पाटील अतिरिक्त आयुक्त यांना दिलेलं आहे। शहरों मज़ाफ़ात की सड़कें तो चौड़ी की जा रही हैं, लेकिन काम की क्वालिटी की पोल उस वक्त खुली जब सड़क में मौजूद एक गड्ढे में एक स्कूल बस का टायर फंस गया। इत्तलात के मुताबिक तोसी शुदा रोड के इस नए काम की खलई उस वक्त खुल गई जब इस सड़क पर अचानक एक बड़ा गड्ढा पड़ गया और इसी में मज़कूरा स्कूल बस अटक कर रह गई। वाज़ेह रहे कि पैठन औरंगाबाद रोड की तोसी व मरम्मत का काम एक साबिक़ मरकज़ी वज़ीर के भाई ने 41% बिलो रेट पर लिया है। 289 करोड़ रुपये के टेंडर के इस रास्ते के काम के म्यार पर लेकिन सवालिया निशान लगने लगे हैं। तेज़ रफ्तारी से किए जा रहे इस रास्ते का काम इंतहाई नाक़िस दर्जे का किया जा रहा है, जिसका सबूत जुमेरात को हुई तेज़ बरसात के बाद अचानक सड़क धंस कर गड्ढा पड़ जाने की वारदात से मिलता है। स्कूल की बस इस गड्ढे में अटक गई, लेकिन बस की रफ्तार कम थी, जिसकी वजह से इसमें सवार तलबा को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कमोबेश 1 घंटा अटकी रही इस बस के टायर को बड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला गया। ठेकेदार के इस काम की जांच का मुतालबा अवाम और शहरियान कर रहे हैं। पीपल गांव वड़न तावाको की फसलों को नदी जोड़ो स्कीम के तहत खुदाई करते वक्त बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, लिहाजा मुतासरा किसान नुकसान भरपाई का मुतालबा कर रहे हैं। बताया जाता है कि हालांकि इस काम का अभी वर्क ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ है और ये काम बजाय इसके कि मौसम गर्मा में किया जाता, इस काम को ऐन बारिश के मौसम में किया जा रहा है, जिसके सबब अभी बोए हुए खरीफ की फसलों के बीज का शदीद नुकसान हो गया है। मुतालिका किसानों ने फुलमरी के तहसीलदार से नुकसान भरपाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि पीपल गांव वड़न की गिरजा नदी के खित्ते से बहने वाले पानी को वाकोद के तालाब में छोड़े जाने के लिए नदी जोड़ मंसूबे के तहत 7.5 किलोमीटर के फासले की पाइपलाइन के लिए गोदावरी खोरे के तरक्याती बोर्ड के तहत 71 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और पाइपलाइन डालकर गिरजा नदी का पानी वाकोद तालाब में छोड़ा जाएगा। लेकिन ये काम गर्मा के मौसम में किया जाना चाहिए था। इसके बरखिलाफ काम ठेकेदार ने अब शुरू किया है और किसानों के खेतों के नुकसान को नज़रअंदाज कर दिया गया। वाज़ेह हो कि किसान अपने खेतों में सोयाबीन की तुख्मरेजी कर चुके हैं, कपास की बुआई हो गई है और इन फसलों के खेतों पर पोकलैंड के जरिए 20 ता 25 फीट चौड़ाई और 8-8 फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। इस खुदाई से निकली मिट्टी के सबब 40 ता 50 फीट खेत की ज़मीन की फसल बर्बाद हो गई है। इस बर्बादी और नुकसान की भरपाई का किसान मुतालबा कर रहे हैं।
शंकर मस्के, राहणार कान्होरी. माझी जमीन कान्होरी शिवारातच 107 गट नंबर आहे. असे काही वरिष्ठ अधिकारी नसताना कंत्राटदाराचे माणसं आले आणि त्यांनी मला गट नंबर विचारला. मी त्याला गट नंबर काही सांगितला नाही पहिले, पण त्याने आला रात्रीच आणून मशीन आणून आपल्या शेतामध्ये गड्डे केले आणि मग सकाळी येऊन बघितलं. ते म्हणे नाही, आम्ही केंद्र शासनाचं काम आहे, तुम्ही जर अडवलं बी तर आम्ही ते काम करणारच आहे. म्हणलं साहेबाचा तुमचा मोबदला देऊन टाकू म्हणे. त्याने डायरेक्ट आमचं पुरं विस्कळीत करून टाकलं जमिनीचं. पासबुक वगैरे घेतलं? पासबुक घेतलं नाही, आधार कार्ड घेतलं नाही, काहीच घेतलं नाही. आधी कोणी अधिकारी वगैरे भेटायला? कोणी अधिकारी आले नाही, काही नाही. ते विनगिन करून आले, कंत्राटदाराचेच माणसं होते. अधिकारी आला नाही, कोण नाही. मोबदला कधी देणार? मोबदला देतो म्हणून सांगितलं, काहीच विषय नाही, तारीख नाही, काही नाही. नुसतं देतो म्हणे, देतो मोबदला. शेतीची पेरणी झाली पूर्ण शेतीची आम्ही त्या गड्ड्यात पेरणी केली, साईटनं केली, पूर्ण शेतीची पेरणी झालेली. माझं नाव शामराव शिवराम पाचवणे, पिंपळगाव वळण, कान्होरी शिवारामध्ये शेती आहे. गट नंबर 161 आहे. माझी जवळजवळ 1.25 एकरची नुकसान होऊ लागली, पूर्ण गड्डे करून ठेवले तिथे. त्याचा मोबदला काही मिळाला नाही आम्हाला. 25 तारखेच्या आतमध्ये मोबदला मिळाला तर बरं, नहीं तो 25 तारीखेपासून आम्ही तहसीलला उपोषणाला बसणार. शहर में मौजूद स्वामी विवेकानंद गार्डन में मिनी बुलेट ट्रेन शुरू की गई है, जिसका इफ्तिताह एमएलए प्रदीप जायसवाल के हाथों किया गया. इफ्तिताही तकरीब के बाद रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने स्कूली तलबा के साथ मिनी ट्रेन का लुत्फ उठाया. ये इफ्तिताह टीवी सेंटर इलाके में मौजूद स्वामी विवेकानंद बाग में औरंगाबाद सेंट्रल हलके के रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल के हाथों किया गया. इस मौके पर जायसवाल के अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा के साथ इस ट्रेन की सवारी करके इफ्तिताह की रस्म में शामिल हुए. दनी असना अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जायसवाल ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की कारकर्दगी और कोशिशों की सराहना की और कहा कि उन्होंने शहर की तरक्यात को अपनी मौजूदा 2 साल कारकर्दगी में इस बुलंदी पर पहुंचाया है कि ये शहरियान अनकरीब जान जाएंगे. उन्होंने बुलेट ट्रेन के इफ्तिताह पर सभी को मुबारकबाद भी दी. बाद अज़ां एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने भी हाज़रीन से खिताब किया और शहर की कई तरक्यात और तज़ीनकारी व सहूलियात की फराहमी का जिक्र करते हुए शहरियान से भी ताउन की अपील की. इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संतोष वाहुड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RN संधा, चीफ गार्डन ऑफिसर विजय पाटिल, PRO अहमद तौसीफ और दीगर अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. वर्ल्ड सिकल सेल कंट्रोल डे की हैसियत से मनाया गया 19 जून का दिन. म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से सभी म्यूनसिपल अस्पतालों में मुनक़िद किए गए बेदारी प्रोग्राम. शहरियान को मज़कूरा मर्ज़ की अलामात और इलाज से मुताल्लिक़ दी गई मालूमात. बिजली सप्लाई कंपनी और बिजली पारेषण कंपनी में इल्तिवा में पड़ी नौकर भर्ती की कार्रवाई असेंबली इलेक्शन से कबल कर ली जाए मुकम्मल. बेरोजगार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने शहर में निकाला मोर्चा और डिविजनल कमिश्नरेट पर किया एहतजाज. मराठा रिजर्वेशन तहरीक के बाद अब ओबीसी मफादात में किए जाने लगे मज़ाहरे. ओबीसी कोटे से मराठा समाज को रिजर्वेशन न दिए जाने के मतालबे पर पैठन तालुके में किया गया रास्ता रोको एहतजाज. और रास्तों के किनारे किए गए नाजायज़ कब्जात के खिलाफ म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शुरू की गई है खुसूसी मुहिम. गुज़िश्ता रोज़ हिमायत बाग चौराहे के अलावा सिडको N7 और मुकुंदवाड़ी इलाके में भी चले बुलडोज़र्स. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.